another video for class 8 and I am going to explain you chapter 9, that is reproduction in animals. In my last video, I explained you up to fertilization and I gave a glimpse of internal and external fertilization. Today in this video, I will explain you in details about what is internal external fertilization, how frogs and fishes does the fertilization, what is male female reproductive organs and all. Okay, so let's start first with internal. What is internal and external fertilization? What is internal fertilization? By the term internal, we can understand that something that happens inside, okay, inside the body. It is called internal fertilization. And external, something which happens outside the body. The fertilization that happens outside the body is external, and the fertilization that happens inside the body is called internal fertilization. For the examples of internal fertilization or the organisms which possesses internal fertilization are like human beings, then your reptiles, different kinds of birds and mammals and some other organisms also. In case of external fertilization, the organisms that concentrate this kind of fertilization are frogs, fishes, etc. In case of internal fertilization, what happens? Female, they possesses female reproductive organ, we know. Male, they possesses male reproductive organ. Female produces female reproductive cell, that is egg. Male produces male reproductive cell, that is sperm. And the fertilization, what happens? The sperm gets inside the female's body, and then the female and male reproductive cell fuses together, and then a zygotism. This kind of fertilization is internal fertilization. In case of external fertilization, what happens? The male gives out male reproductive cell, female gives out female reproductive cell, and the fertilization that occurs, it occurs outside the body. Okay, and that is called external fertilization. Now we will come to the fertilization in frogs and fishes. As like other organisms, fishes and frogs also does fertilization. That's why only we can come to see fishes, frogs. Okay, so in case of fishes and frogs, what happens? The fertilization that occurs, it occurs outside the body. The fertilization doesn't occur inside the body. What happens? Frog, हम लोग कहाँ पे देखते हैं जब ये फर्टिलाइजेशन होता है? फ्रॉग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम लोग टैडपोल्स कहते हैं, वो हम लोग पानी में देखते हैं. जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, जब लाइक स्प्रिंग और रेनी सीजन, द फ्रॉग्स एंड फिशेस क्या होता है, वो लोग बहता पानी जो होता है जहाँ पे फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं वैसे जगहों पे जहाँ पे बहाव जो होता है पानी का वो कम होता है, ताकि रिस्क कम हो जाए. फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है, पानी बहा के भी लेके जा सकता है और फिर स्पॉइल भी हो सकता है. तो इसीलिए क्या होता है, वो लोग जहाँ पे फोर्स ज़्यादा रहता है पानी का, वहाँ से वो लोग हट के जहाँ पे पानी स्थिर होता है वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं. फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो लोग पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स में आ जाते हैं, आके क्या करते हैं, एग देते हैं. जब फीमेल जब एग देती है, एग छोड़ती है पानी में, उस टाइम पे मेल भी क्या करता है, मेनली स्पर्म जो है पानी में छोड़ता है. उसी टाइम पे क्या होता है, फीमेल का जो एग होता है वो एक जेली कोटिंग में कवर हुआ होता है. और क्यों ये जेली कोटिंग में सारे एग्स जो है एक साथ एक जेली कोटिंग में कवर्ड रहते हैं? क्यों रहते हैं? ताकि ये प्रोटेक्शन हो पाए. हाँ, ताकि ये एक साथ रहे और प्रोटेक्शन हो पाए. अगर फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम पे, तो मेल क्या होता है, वो मिलियंस ऑफ एग्स देता है, स्पर्म्स देता है एक ही टाइम पे, वो पानी में छोड़ता है. अब why frogs and fishes there hundreds of eggs at a time? क्यों frogs और fishes जो होता है वो इतने सारे अंडे और स्पर्म्स पानी में छोड़ते हैं? क्यों इतने सारे एग्स छोड़ते हैं? क्योंकि क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, पानी में वो लोग देते हैं एग्स. ये एग्स जो होता है रिस्क हमेशा ज़्यादा रिस्क बना रहता है क्योंकि ये बाहर फर्टिलाइजेशन होगा. और एक चीज़ क्या होता है, जो फ्रॉग का जो एग है या फिशेस का भी जो एग है
हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, ह्यूमन एग जो होता है उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक जेली कोटिंग रहता है जो क्या करता है, अलाउ करता है स्पर्म को अंदर आने में, और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है। वैसे ही टाइप का एक लेयर फिश और फ्रॉग्स के केसेस में भी होता है, पर वो थोड़ा और हल्का रहता है, मतलब थोड़ा और पतला रहता है, सॉफ्ट रहता है, ताकि क्या हो, ये जो स्पर्म है वो इजीली एग के अंदर घुस पाए। हाँ, तो अब सोच लो मेल ने बहुत सारे एग्स दिए उसी टाइम, सॉरी फीमेल ने बहुत सारे एग्स दिए उसी टाइम पे मेल भी देगा स्पर्म बहुत सारा। अब व्हाई दे ले सो मेनी एग्स, क्यों फ्रॉग्स और फिशेस इतने सारे अंडे देते हैं एक ही टाइम पे? इसका बहुत 3 रीजन है। पहला रीजन जो है वो क्या है, फ्रॉग्स जब पानी में अंडे देते हैं, क्या होता है, पानी के बहाव के वजह से या फिर रेनफॉल के वजह से या विंड के वजह से क्या होता है, कुछ स्पर्म्स या एग्स इधर उधर बिखर जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। रेन ड्रॉप्स भी उसको स्पॉइल कर सकता है, इस वजह से बहुत सारे एग्स देते ताकि कुछ तो बच जाएगा। अगर कुछ खराब भी हो गया या पानी बहा के भी कुछ लेके गया चला गया, तब भी कुछ तो बच जाएगा जो आगे जाकर एक एडल्ट फिश या फ्रॉग बन पाएगा, जो आगे जाके फिर से रिप्रोडक्शन करेगा और जो उनका जो एक ये जो स्पेसीज है उसको कंटिन्यू करेगा। अब होता है और एक रीजन जो होता है, वो रीजन है पानी में तो और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब पानी में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी खा सकते हैं एग या स्पर्म को, वो भी खा लेंगे, जिस वजह से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। खा लेंगे तो ये फर्दर जाके रिप्रोडक्शन नहीं, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस वजह से भी वो बहुत सारे एग्स और स्पर्म छोड़ते हैं। थर्ड रीजन जो होता है वो क्या होता है, सोच लो वो एग्स और स्पर्म जो उन लोगों ने पानी में छोड़ा था वो कुछ हद तक फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसका, सोच लो। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, लार्वा फॉर्मेशन भी हो गया, अब भी तो खा सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स, तब भी जाके कुछ घटता ही रहेगा। इसीलिए ये तीनों चीजें दिमाग में रखते हुए वो लोग इतने सारे एग देते हैं कि अगर सोच लो 500 एग भी दे दिया तो पानी में कुछ बहा के लेके गया पानी, सोच लो हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या हो गया, रेनफॉल के वजह से, विंड के वजह से या फिर पानी के बहाव की वजह से खराब हो गया। अब जो 400 रह गए उनमें से भी सोच लो 100-200 को दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया, तब अगर 200 भी खा लिया तब भी अभी 200 बचा हुआ है। अब अगर वो 200 सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो गए और लार्वा फॉर्मेशन हो गया, अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स ने क्या हुआ, 100 और खा गए, तब भी जाके 100 तो बच जाएगा ना। 100 जो फ्रॉग्स के एग्स जो है और लार्वा जो है वो सक्सेसफुली एडल्ट फ्रॉग या फिश बन जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए क्या करते हैं, फ्रॉग्स या फिशेस इतने सारे एग्स या स्पर्म पानी में देते हैं। अब ये हो गया फ्रॉग्स और फिशेस के बारे में। उसी तरह से क्या होता है, एनिमल्स जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है उनमें क्या होता है, सोच लो ह्यूमन में ही अगर सोच लोगे तो मेल में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म करते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म करता है। मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है, सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कहा जाता है वो होता है क्या, टेस्टिस। और फीमेल में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पेनिस। तो और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको क्या कहा जाता है, स्पर्म। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको कहा जाता है एग। तो क्या होता है, जब ये फ्यूज होते हैं, जब ये स्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाता है और एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों को पहले से ही पता था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था। जो जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो क्या होता है, रैपिडली वो क्या डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन। ये जाइगोट क्या होता है, ये एक सेल होता है, सिंगल सेल। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, जितने भी बड़े क्यों ना ऑर्गेनिजम्स, उनका जो ओरिजिन होता है या फिर बिगिनिंग जो होता है वो एक सिंगल सेल से ही होता है। हाँ, तो ये
एम्ब्रायो है वो इट लुक्स लाइक ए हैप्पीजर वर्ड, कोई क्लियर उसका कुछ सोच लो ह्यूमन बेबी, अगर ह्यूमन एम्ब्रायो फॉर्म हुआ तो देख के समझ नहीं आएगा कि ये ह्यूमन बेबी है। एक रफ स्केच के जैसे सोच लो, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ एक फॉर्मेशन हो गया एक के अंदर, ये हो गया एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो है वो सिंगल सेल नहीं होता है। जाइगोट जब 100 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और 100 सेल्स हो जाते हैं तब वो एक ऐसा कुछ एक रफ स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। अब ये एम्ब्रायो क्या होता है, ये एम्ब्रायो और भी फर्दर डिवीजन होता रहेगा, सेल तो कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवीजन। अब जाके ये फॉइटस फॉर्मेशन होगा। ये जो फॉइटस है ये क्या होता है, ये फॉइटस जो है ये जब मेन हम लोग का जो ऑर्गन सिस्टम्स के मेन जो पार्ट्स है, फीचर्स जो है, जैसे मैं ह्यूमन हूँ, जो ह्यूमन बेबी के जो कुछ मेरे मेन फीचर्स होंगे, मैं ह्यूमन, मेरा जो स्पेसीज का जो कुछ एक मेन फीचर्स होंगे, जब ये एम्ब्रायो डेवलप हो गए, उसमें और भी सेल डिवीजन हुए और मेन जो फीचर्स है वो बन गए, तब जाके उसको हम लोग फॉइटस कहते हैं। हाँ, तो ये जो एम्ब्रायो, फॉइटस वगैरह इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे डिटेल्स में। फिलहाल हम लोग पहले जान लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स में या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको मेल कहते हैं हम लोग, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको फीमेल कहते हैं हम लोग। तो इसको डिटेल्स में अब जानते हैं। ये क्या है, ये जो डायग्राम है ये किस चीज का डायग्राम है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस का डायग्राम। ये ह्यूमन बीइंग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, तो मैंने जो टेस्टिस के बारे में कहा था, दिस इज द टेस्टिस, टू टेस्टिस आर देयर, इट लुक्स लाइक पीस टाइप स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक दिस somehow like this kind of structure it has। इसके अंदर ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बहुत सारे स्पर्म्स का, मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है इसी के अंदर होता है। ये जो टेस्टिस है, ह्यूमन बीइंग्स में मेल में 2 टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कहा जाता है वो है टेस्टिस। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बाकी भी इक्वली सपोर्ट करते हैं, उनका भी इक्वली इसमें पार्ट है। बट इसको क्यों रियल कहा जाता है, क्योंकि जो स्पर्म जो है वो फॉर्मेशन इसी में होता है, इसी टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है मेल्स में। ओके, यहाँ पे जब ये अभी यहाँ पे फॉर्म हो गया स्पर्म, अब ये जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। हमारे इंटरनल बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है और हमारे बॉडी का बाहर का जो टेम्परेचर वो सिमिलर नहीं है। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है बाहर से, और अगर तुम लोग ये जो टेस्टिस है ये बॉडी से बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं बॉडी से, क्योंकि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल नहीं होता है इन टेस्टिस के लिए, ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सके। The internal temperature of the body is not that suitable for the testis to form or to produce sperm। इसीलिए ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर होते हैं, पर इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। ये जो स्क्रोटल सेक है, जो ये स्क्रोटल सेक है ये क्या है, एक थिन बैग जैसा स्ट्रक्चर, ये स्किन लेयर है थिन, जो प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को, क्योंकि ये बाहर होते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करता है स्क्रोटल सेक। अब यहाँ पे जब फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म का, तब क्या होता है, ये स्पर्म धीरे धीरे एपिडाइडिमिस में आ जाता है। व्हेन इट कम्स टू एपिडाइडिमिस, फिर क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे स्पर्म डक्ट में जाता है। स्पर्म डक्ट में ये जो है ये पोर्शन, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं। इसको देखो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसको क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपिडाइडिमिस कहते हैं। यहीं पे आके स्पर्म जब ये टेस्टिस से निकलता है स्पर्म तो यहीं पे पहले आता है, एपिडाइडिमिस में ही पहले आता है, फिर ये धीरे धीरे स्पर्म डक्ट में जाता है। स्पर्म डक्ट
ऑर्गन में ये चला जाता है। स्पर्म जो है पहले से निकलता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये चला जाता है और फिर ये जाके एग के साथ जाके फ्यूज होता है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अच्छा, तो पहले क्या समझाया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इन ह्यूमंस। अभी क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। जैसे मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो जिसे हम लोग मेल कहते हैं। क्यों मेल कहते हैं? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें होता है। उसी तरह से जिसे हम लोग फीमेल कहते हैं उसे फीमेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल में जैसे 2 टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, उसी तरह से फीमेल में जो है 2 ओवरीज होते हैं और ओवरीज को क्या कहा जाता है? ओवरी को ही कहा जाता है मेन रिप्रोडक्टिव और रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ व्हाट हैपेंस दिस इन ओवरी में ही जो होता है एग फॉर्मेशन होता है। एग जो है वो ओवरी में फॉर्मेशन होता है और ये कहा जाता है ओविडक्ट में जाता है। ये जो ओविडक्ट है जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। उसको वहां पे जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ओविडक्ट में ही होता है। पर ये जो ओवरी है और ओविडक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओवरी और ओविडक्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, पर वो कनेक्टेड कैसे होता है? ये जो फनेल ऑफ ओविडक्ट जो है, ये एक फनेल टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? ओवरी को कवर करके रखता है, वो कनेक्ट करता है ओविडक्ट और ओवरी को। ये जो फनेल ऑफ ओविडक्ट जो है ये कनेक्ट करता है किसको? ओवरी और ओविडक्ट को एक साथ कनेक्ट करता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में होता है। ओवरी में सिर्फ एग निकलता है। अच्छा, जब हर महीने क्या होता है? हर महीने एक मैच्योर एग जो होता है वो ओवरी से निकल के ओविडक्ट में जाता है और ये जो एवरी मंथ होता है उसको क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। एवरी मंथ व्हाट हैपेंस? one matured egg from the ovary comes out and goes to the oviduct. This is called what? Ovulation. The release of egg from the ovary and to the oviduct is called ovulation. अच्छा, अब जो क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन कब होता है? ओव्यूलेशन तो उसको कहते हैं जब हर महीने ही जाएगा, पर हर महीने फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। हर महीने एक निकलेगा ओवरी में से, ये हम लोग को पता है, और कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। पर हर मंथ थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तब तो एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा हर मंथ। आफ्टर लाइक एवरी मंथ a new zygote will be formed and like a new starting of a new organism will go on every month. पर ये हर महीने क्या होता है? बस एग निकल के जाता है और फटफट ये फर्टिलाइज नहीं होता है। कब फर्टिलाइज होगा? जब यहाँ में से स्पर्म अंदर जाएगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ में से स्पर्म अंदर जाएगा, कहाँ पहुंचेगा? जाके ओविडक्ट में पहुंचेगा, तभी जाके फ्यूज होगा और तुम्हारा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। ये जो ओवरी है क्या होता है? ओवरी में से अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे इस सिस्टम में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओवरी में से एक एग निकलता है और ओविडक्ट में जाता है। कैसे जाता है? थ्रू दिस फनेल ऑफ ओविडक्ट। थ्रू दिस फनेल ऑफ ओविडक्ट one egg is released by ovary and it reaches to the oviduct. Okay, here fertilization occurs. फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे होता है, मतलब मेल स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुँचता है और यहीं पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट क्या होता है? जाइगोट आता है कहाँ पे? यहाँ पे आता है जाइगोट यूटेरस में, जिसको वोम भी कहा जाता है। मदर्स वोम भी नो, मदर्स वोम जिसको कोक कहा जाता है, हम लोग कहते हैं माँ की कोक। तो इसी कोक को यूटेरस जो है उसी को कोक कहा जाता है और या फिर वोम कहा जाता है जो यहाँ पे होता है। ये फर्टिलाइज एग जो है जब ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है हो जाता है तब
में इतना ही तक मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो भी टॉपिक्स बाकी रह जाएंगे इस चैप्टर्स के, वो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो थैंक यू। और आप लोग, मैं दो ये इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर वेरी केयरफुली and read each and every line so that you could come to know about this chapter or these topics in details. Thank you.